तो आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको अभी, और 50 क्वेश्चंस में आपके सामने क्वेश्चन आएगा, उसमें चार ऑप्शन होंगे, चारों में से आपको करेक्ट कौन सा होगा, ए बी सी, वो फटाफट चैट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। प्रिसीजन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइन एज, जो प्रिसीजन होता है इंस्ट्रूमेंट का, वो उसकी डेफिनेशन है क्लोजनेस ऑफ आउटपुट टू द ट्रू वैल्यू, चेंज इन द आउटपुट फॉर एवरी चेंज इन द इनपुट, डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द रैंडम बिहेवियर, बोथ ए एंड बी। राइट आंसर इज ओके। ओके, गुड गुड गुड, वेरी गुड। फटाफट आप आंसर कर दिया करो। तो राइट आंसर इज सी। तो प्रिसीजन इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द रैंडम एंड एरर्स। तो सभी ने आंसर सी किया है, दैट्स वेरी गुड। तो राइट आंसर इज सी, डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द रैंडम एरर। तो प्रिसीजन इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द रैंडम एरर, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। An instrument with high precision implies high accuracy, low accuracy, doesn't imply anything about the measurement accuracy, and none of these. So right answer is C. Does not imply anything about the accuracy. That's good. Means precision का accuracy, precision अलग से जाती है, accuracy अलग से जाती है. C is the correct option. Now next is, for an instrument, the degree of repeatability or reproducibility in the measurement is an alternative way of expressing its precision, accuracy, sensitivity, or linearity. Right answer is okay. A, good. A, precision. Very good. So precision is the degree of repeatability and or reproducibility in the measurement. So, A is the correct option. Okay, good. Now next, for the observation, observation recorded as a set of current measurement are 1 to 5.09 milliampere, 1 to 5.21 milliampere, 1 to 5.05 milliampere, 1 to 5.14 milliampere. So range of span of error will be, correct answer is C. Good, good. That is point. Correct answer is C. Plus minus 0.08 milliampere. Now next question. आप लोगों ने पढ़ाई करी है इसका मतलब। The output reading of an instrument is linearly proportional to the quantity being measured, inversely proportional to the quantity being measured, exponentially proportional to the quantity being measured, not related to the quantity being measured. So right answer is A. That's good. Linearly proportional to the quantity being measured. जो quantity measure की जा रही है उसकी linearly proportional होता है किसी भी instrument का output reading. So that's good. A is the correct option. The sensitivity of an instrument is measure of, sensitivity किस चीज का measurement है? Change in the instrument output when the quantity being measured change by a given amount. Closeness of output reading for the same input when there are change in the method of measurement. Ratio of output to the input. Closeness of the output reading of the instrument to the true value. The right answer is A. That's good. A, not C. सिमरन आपने बेटा सही से नहीं पढ़ा हो गया। The correct answer is A. Change in the instrument output when the quantity being measured change by a given amount. ठीक है ना, तो जितना जैसे इनपुट में चेंज होता है उस हिसाब से आउटपुट में भी चेंज हो जाए, तो उसका मेजरमेंट होता है सेंसिटिविटी। ठीक है, तो A is the correct answer. In an instrument, torque by weight ratio is known as. Right answer is A, sensitivity. दिया, very good बेटा। A, sensitivity। ठीक है, सभी लोग आंसर कीजिए, एक बच्चा मत करेंगे, एक ही बच्चे ने आंसर कर दिया, सब लोग आंसर करते रहिए बेटा। वेरी गुड। तो टॉर्क बाय वेट रेशियो इज आल्सो नोन एज सेंसिटिविटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। resolution of an instrument is specified as absolute value, percentage of full deflection, either A or B, none of these. C, either A or B means absolute value as well as it also sometimes it is also known as percentage of full scale deflection. So C is the correct option, either A or B. Okay, very good. Next question. Difference between measured value and the true value known as relative error, random error, absolute error और सिस्टमेटिक एरर। तो राइट आंसर इज एब्सोल्यूट एरर। जो एब्सोल्यूट एरर होती है ये मेजर्ड वैल्यू और जो उसकी ट्रू वैल्यू होती है उसका डिफरेंस होता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट always disturb the system being measured. It may or may not be disturb the system being measured. Never disturb the system being measured. None of these. So correct answer is
A may always disturb the system being measured. So the right answer is A. Process of measurement always disturb the system being measured. So correct answer is A. Now next, the moving system in the indicating instrument is subjected to deflecting torque, controlling torque, damping torque या all of the above. जो मूविंग सिस्टम होता है उसमें इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में किस किस का होता है, क्या क्या होता है उसमें? तो राइट आंसर इज भैया ए। नो नहीं, ए नहीं है, ए नहीं है, ए नहीं है बेटा। करेक्ट आंसर इज डी। डी, यस, डी, डी इज द करेक्ट आंसर। मींस इसमें डिफ्लेक्टिंग, कंट्रोलिंग, डैम्पिंग तीनों टॉर्क होते हैं, ठीक है ना। मूविंग सिस्टम, किसी भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के जो मूविंग सिस्टम होता है उसमें तीनों डैम्पिंग टॉर्क की भी जरूरत पड़ती है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की जरूरत पड़ती है, कंट्रोलिंग टॉर्क की जरूरत पड़ती है और डैम्पिंग की भी। तो इसमें तीनों की जरूरत होती है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अपने आप को करेक्ट करो आप लोग जिसने गलत बताया। तो डी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is not an indicating instrument? निम्नलिखित में से कौन सा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है? तो राइट आंसर इज एम्पियर आवर मीटर, वाट आवर मीटर, वोल्ट मीटर, ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम देखते हैं इंटीग्रेटिंग जो होता है एक तरह से वो जो मतलब उसकी रीडिंग होती है उसको एड ऑन करते चला जाता है। तो एम्पियर आवर मीटर भी उस तरह का होता है, वाट आवर मीटर भी, लेकिन वोल्ट मीटर नहीं होता है। तो वोल्ट मीटर सी इज द करेक्ट आंसर। तो सभी ने सी आंसर किया है, that's good. Now next question is, which of the following material will be preferred as a shunt for extending the range of measurement of a voltmeter? voltmeter की रेंज को एक्सटेंड करने के लिए कौन से मटेरियल को प्रेफर करते हैं? कॉपर, स्टील, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ठीक है। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर। सभी ने डी दिया है, दैट्स गुड। नाउ नेक्स्ट, एन एमीटर इज कन्वर्टेबल टू ए वोल्ट मीटर। एक एमीटर को हम वोल्ट मीटर में चेंज कर सकते हैं, क्या करके? ए ऑप्शन, चेंजिंग द स्केल, अगर स्केल को चेंज कर दें, पुटिंग ए लार्ज रेजिस्टेंस इन द पैरेलल विद द एक्चुअल मेजरिंग पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मींस इंस्ट्रूमेंट के मेजरिंग पार्ट के पैरेलल में एक लार्ज रेजिस्टेंस रख दें, या फिर उसके सीरीज में रख दें, सी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज सिंपली इंस्टॉलिंग द इंस्ट्रूमेंट इन द पैरेलल विद द सर्किट। तो राइट आंसर इज सी, दैट्स गुड। सी सभी ने आंसर किया है। हम क्या करेंगे कि सीरीज में इंस्ट्रूमेंट के सीरीज, जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा वोल्ट मीटर है, एमीटर है, एमीटर के सीरीज में हम एक लार्ज रेजिस्टेंस रख देंगे, लगा देंगे, तो वो एक एज ए वोल्ट मीटर काम करने करेगा, ठीक है ना। तो एमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ इन हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट द सेंसिंग वायर इज मेड ऑफ। जो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें सेंसिंग वायर किसकी बनी होती है? कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनम, इरिडियम, कॉपर, निकल। राइट आंसर इज प्लेटिनम इरिडियम। ओके, दैट्स गुड। राइट आंसर इज प्लेटिनम इरिडियम। सभी ने सही आंसर किया है, सभी लोगों ने पढ़ा है इसका मतलब। नाउ नेक्स्ट इज, ए मेजरिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। जो मेजरिंग सिस्टम होता है जनरली उसमें क्या क्या होता है? ए सेंसर, बी वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट्स, सी सिग्नल प्रोसेसिंग एलिमेंट, डी ऑल ऑफ दिस। तो क्या होता है इसमें? राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस, यस। सेंसर भी होगा, सभी ने इसका तो सभी ने करेक्ट आंसर किया। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, और ये एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी है इस क्वेश्चन की, क्योंकि ये एक बेसिक क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आने चाहिए प्रोबेबली। बाकी देखते हैं कि किसी भी, देखो मेजर, जब ये तीनों चीजें होंगी तभी वो सब मिलके आपस में एक मेजरिंग सिस्टम को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। सेंसर सेंस करेगा, वेरिएबल कन्वर्ट करेगा और सिग्नल को प्रोसेस करना है। तो तीनों की तीनों चीज होनी जरूरी है। तो मेजरिंग सिस्टम के लिए ये तीनों के लिए कंपल्सरी है, ठीक है ना। तो दैट इज दिस द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दिस। द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क The deflecting torque is in an instrument may be produced. जो deflecting torque होता है इंस्ट्रूमेंट में, वो कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? मैग्नेटिकली, इलेक्ट्रोस्टैटिकली, थर्मली, या एनी ऑफ द अबव, या इनमें से कोई सा भी एक तरीका यूज करके। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके यूज कर सकते हैं हम? एनी ऑफ द अबव। दिस इज द करेक्ट आंसर, यस, वेरी गुड। तो मैग्नेटिकली भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिकली भी कर सकते हैं, थर्मली भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज द राइट आंसर। एडवांटेजेस ऑफ मूविंग कोइल परमानेंट मैग्नेट टाइप इंस्ट्रूमेंट आर। जो पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसका फायदा है, नंबर एक, लो पावर कंजप्शन, सबसे कम पावर होता है, हिस्टैरिसीस लॉस नहीं होते हैं, एफिशिएंसी, एडी करंट, डैम्पिंग, या ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर इज डी। ये तीनों इसके फायदे हैं, ठीक है, तीनों इसके बेनिफिट है। तो डी इज द राइट आंसर। सभी ने सही आंसर किया, वेरी गुड।
विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड फॉर डीसी ओनली? सिर्फ डीसी को कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है? ओनली डीसी को। मूविंग आयरन अट्रैक्शन टाइप, मूविंग आयरन रिप्लेशन टाइप, परमानेंट मैग्नेट टाइप या हॉट वायर टाइप? तो राइट आंसर इज सी। दैट्स गुड। आपको पढ़ाया गया था पीएमएमसी, तो उसमें बताया गया था पीएमएमसी केवल डीसी ही मेजर करता है, ठीक है ना? तो सी इज द करेक्ट आंसर। विच टाइप ऑफ वाट मीटर कैन नॉट बी यूज्ड बोथ एसी एंड डीसी? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वाट मीटर है जो दोनों के लिए यूज होता है, एसी के लिए भी डीसी के लिए भी? डायनोमीटर टाइप, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप, इंडक्शन टाइप या नन ऑफ द अबोव? तो ये तीनों जो होते हैं, डायनोमीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इंडक्शन, ये तीनों एसी के लिए तो होते हैं लेकिन डीसी के लिए नहीं होते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए ये इसका राइट आंसर इज डी। सभी ने डी आंसर किया है, वेरी गुड। नाउ next question is, a moving iron type emitter has few turns of thick wire so that, जो moving iron type emitter होता है उसमें thick wires के turns होते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस इज लेस, उसका रेजिस्टेंस कम होता है, सेंसिटिविटी हाई होती है, डैम्पिंग इज, उसकी डैम्पिंग प्रभावी होती है, या स्केल बड़ा होता है? तो राइट आंसर इज ए। इज द राइट आंसर। उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, ठीक है ना? तो एमीटर में जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ही कम लॉस होगा, उतनी अच्छी उसकी रीडिंग आएगी, उतनी एक्यूरेसी रहेगी। तो इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कांट बी यूज्ड टू डीसी? निम्नलिखित में से कौन सा डीसी के लिए यूज नहीं कर सकते? मूविंग आयरन अट्रैक्शन टाइप, मूविंग कोयल परमानेंट मैग्नेट टाइप, हॉट वायर, इंडक्शन टाइप? तो राइट आंसर इज डी। ओके, वेरी गुड। मूविंग आयरन जो होता है उसको हम डीसी एसी दोनों में कर सकते हैं, पीएमसी में सिर्फ डीसी कर सकते हैं, हॉट वायर में हम एसी डीसी कर सकते हैं, और ये आपका इंडक्शन टाइप में सिर्फ और सिर्फ एसी यूज होता है, डीसी में नहीं होता है, ठीक है? नाउ नेक्स्ट, रिपल्सन टाइप एमिटर व्हेन यूज्ड ऑन एसी सर्किट रीड्स? जब रिपल्सन टाइप एमिटर होते हैं, जब एसी पे यूज करते हैं तो क्या रीड करते हैं? पीक वैल्यू ऑफ द करंट, या आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट, मीन वैल्यू ऑफ द करंट, या इक्विवेलेंट डीसी वैल्यू ऑफ द करंट? तो राइट आंसर इज बी। जो एमिटर्स होते हैं रिपल्सन टाइप हो चाहे कोई सा हो, वो आपका आरएमएस वैल्यू को रीड करते हैं, ठीक है ना, एसी सर्किट की। तो राइट आंसर इज सी, सॉरी बी। बी इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो सभी ने राइट आंसर किया, दैट्स गुड। The error due to hysteresis in moving iron type instrument is minimized by using, जो hysteresis होती है मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में, उसकी वजह से जो एरर होती है उसको हम कम कर सकते हैं, क्या यूज करके? स्टेनलेस स्टील, हाई स्पीड स्टील, सिल्वर कोटिंग, या प्रेम ओले एलॉय? राइट आंसर इज ए। इज द राइट आंसर, स्टेनलेस स्टील, ठीक है? तो इज द राइट आंसर। इसमें कम लोगों ने आंसर किया है। Which type of wattmeter can't be used for DC? डीसी के लिए कौन सा यूज नहीं कर सकते? क्वेश्चन रिपीट है, फटाफट बताओ। कैन नॉट बी यूज फॉर डीसी, सी इंडक्शन टाइप, ठीक है ना? सी इज द, कोई बी बता रहा है, कोई सी, कोई ए, तो राइट आंसर इज सी। अभी तो आया था क्वेश्चन, सेम सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है ना? इन मूविंग आयरन टाइप एमिटर द कॉइल हैज, जो मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें कॉइल में क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ थिक वायर, लार्ज नंबर ऑफ टर्न ऑफ थिन वायर, few turns of thin wire and few turns of thick wire? तो right answer is कोई डी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है, तो राइट आंसर इज डी, few turns of thick wire. So D is the right answer. Now come to the next question. In repulsion type instrument, the force of repulsion is approximated proportional to, जो रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? करंट के, या स्क्वायर ऑफ करंट के, या इनवर्स ऑफ द करंट के, या इनवर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ करंट के? राइट आंसर इज स्क्वायर ऑफ करंट, ठीक है ना? इस वजह से क्या होता है कि ये इसका जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है, वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। इसी वजह से जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जब आपको पढ़ाया गया था तो उसमें बताया गया था कि ये इसी वजह से ये एसी को भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना? तो बी इज द करेक्ट आंसर। सभी ने बी आंसर किया, दैट्स गुड। ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आपको, तो ना बेसिक है बिल्कुल एकदम से, और ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत है ना। ओम मीटर क्या है? ओम मीटर इज ए मीटर टू रिकॉर्ड द ओम, यूज्ड टू मेजर द रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ एमीटर एंड इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो राइट आंसर इज बी, दैट्स गुड।
ये एक रेजिस्टेंस को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना। तो ओम मीटर क्या है कि जो रेजिस्टेंस को मेजर करता है, ठीक है ना। तो ओम मीटर बड़ा इजी है क्वेश्चन, बहुत बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट रीड्स, जो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो क्या रीड करते हैं, पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, नन ऑफ द अबव। जल्दी से बताओ इसका आंसर। ओके दैट्स गुड, आरएमएस वैल्यू, ठीक है। थोड़ी देर पहले भी सेम क्वेश्चन इस प्रकार आया था, घुमा के दूसरे क्वेश्चन पूछा गया था वो। तो आरएमएस वैल्यू मेजर करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इज which one of the following is the main cause of magnetic decay in the PMC type instrument। तो PMC टाइप इंस्ट्रूमेंट में निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नेटिक डिके का मेन कारण है। वेरिएशन इन द रेजिस्टेंस ऑफ द मूविंग कॉइल, क्वालिटी ऑफ द स्प्रिंग, एजिंग ऑफ द स्प्रिंग, या एजिंग ऑफ द, क्या लिखा है, मैग्नेट्स, ठीक है। तो राइट आंसर इज एजिंग ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेट की जैसे जैसे लाइफ होती जाती है उसकी जैसे मैग्नेट डिके में आते जाता है। तो राइट आंसर इज डी, ठीक है ना। थोड़ा हटके है क्वेश्चन पर इंपोर्टेंस इसकी अपनी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। Which instrument has necessarily the square law type scale। जो निम्नलिखित में से कौन सा है जिसके पास स्क्वायर लॉ टाइप स्केल होना चाहिए। तो कौन सा है वो, पर पीएमएमसी टाइप है, या फिर हॉट वायर है, या मूविंग आयरन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इज बी, यस वेरी गुड। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें स्क्वायर लॉ टाइप स्केल की नीड होती है, ठीक है ना, जरूरी होता है। बेटा म्यूट रखिए प्लीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is incorrect about the hot wire instrument। जो hot wire instrument होते हैं उनके बारे में निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। the right options are their reading is independent of the waveform। उनकी रीडिंग वेवफॉर्म से वो लेना देना नहीं है। the reading is independent of frequency से कोई लेना देना नहीं है। they are unaffected by stray fields। their response is instantaneous। तो राइट आंसर इज डी, उनका रिस्पॉन्स इंस्टेंटेनियस होता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर इज डी, डी इज द इनकरेक्ट है ना, डी इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शन करेक्ट है इसके, हमें इनकरेक्ट ही बताना था, तो डी इज द इनकरेक्ट। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज डी। which type of damping is generally used in case of instrument having a weak magnetic field। उन इंस्ट्रूमेंट्स में जिनमें मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होती है उसमें किस तरह की डैम्पिंग यूज करते हैं। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, एडी करंट डैम्पिंग, या हिस्टेरिसिस डैम्पिंग। जल्दी से बताइए आंसर अपने। ओके ए, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, दैट्स गुड। तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग इज यूज्ड जहां पे वीक मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। गुड। नाउ नेक्स्ट, वोल्टमीटर सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज। जो वोल्टमीटर सेंसिटिविटी होती है उसकी परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, वोल्ट पर ओम, इट इज ओम्स पर ओम, इट्स डिग्री ऑफ सेंसिटिविटी टू द इनपुट्स द चेंज। लो ए इज द करेक्ट आंसर। जो सेंसिटिविटी होती है वो रेसिप्रोकल ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ द करंट होता है, जो वोल्टमीटर सेंसिटिविटी होती है, ठीक है ना। तो वोल्टमीटर सेंसिटिविटी जो होती है वो रेसिप्रोकल ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट होता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। Now which of the following instrument is undesirable for the measuring of AC value। तो निम्नलिखित में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट AC वैल्यूज के मेजरमेंट के लिए अनडिजायर्ड है। तो मूविंग आयरन, या मूविंग आयरन रिपल्सन, मूविंग आयरन अट्रैक्शन, डायनामोमीटर, या पीएमसी। तो राइट आंसर इज पीएमसी। हम पढ़ते आ रहे शुरू से ही पीएमसी सिर्फ और सिर्फ डीसी मेजर करता है, वो एसी मेजर नहीं कर सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का मीनिंग वही है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एसी को मेजर नहीं कर सकता। तो एसी को पीएमसी इंस्ट्रूमेंट मेजर नहीं कर सकता क्योंकि पीएमसी सिर्फ और सिर्फ डीसी को मेजर करता है। इन विच इंस्ट्रूमेंट द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। निम्नलिखित में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट का जो डिफ्लेक्शन टॉर्क होता है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड होता है। वो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट होता है, या मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट होता है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। दैट इज इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, दैट्स गुड। तो इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनका जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तो राइट आंसर इज डी। ओके, बाकी में ना करंट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। इन तीनों में करंट पे डिपेंड करता है। अगर मान लिया क्वेश्चन आता है कि डिपेंड्स ऑन द करंट, तो इन दोनों पे करंट पे डिपेंड करता है। लेकिन इंडक्शन टाइप में क्या होता है, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। इन सीरीज टाइप ओम मीटर द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इंडिकेटर इज मार्क। जो सीरीज टाइप ओम मीटर होते हैं उनका जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन इंडिकेटर होता है वो क्या मार्क करता है, जीरो करता है, इनफाइनाइट करता है, या 100 का ओम करता है, या 1 मेगा ओम करता है। तो दिट इज जीरो मार्क करता है, ठीक है ना।
तो बीच में वो रहता है और उसके हिसाब से उसको मार्क करता है। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जो होता है इंडिकेटर उसमें वो 0 पे मार्क करता है। तो इज द करेक्ट आंसर, दैट्स गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर विल रिक्वायर द स्मॉलेस्ट शंट रेजिस्टेंस। अब सबसे कम शंट रेजिस्टेंस, जैसे ये आपको दिए गए हैं तीन, ठीक है ना, चार रीडिंग दी गई हैं, तो इनमें से सबसे कम कौन से वाला है जिसको सबसे छोटे शंट रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो हमें देखना होगा सब जिसकी सबसे ज्यादा रेंज होगी, ठीक है ना, उसमें ही सबसे कम शंट की जरूरत पड़ेगी। अब देखते हैं 0 से 10 मिली एम्पियर, 0 से 100 मिली एम्पियर, 0 से 1 मिली एम्पियर, 0 से 10 एम्पियर। तो सबसे ज्यादा रेंज किसकी हुई? 0 से 10 एम्पियर। तो डी इज द करेक्ट आंसर। सभी ने डी किया है, वेरी गुड। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ इन शंट टाइप ओम मीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इंडिकेटर इज मार्क। ये फिर से आ गया सेम है ना, नहीं ये उल्टा है। तो पहले सीरीज टाइप में था, ये शंट टाइप में है। इसका आंसर इज, जल्दी से आंसर करो उसको, इनफाइनाइट, बी, वेरी गुड। अगर सीरीज राइट टाइप में 0 होता है तो जो शंट टाइप में वो इनफाइनाइट होता है। ये थोड़ा सा याद रखना कि जो शंट सीरीज टाइप ओम मीटर होते हैं उसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इंडिकेटर वो 0 को मार्क करता है, और जो शंट टाइप होते हैं वो इनफाइनाइट को मार्क करता है। तो इस केस में हमारा आंसर हुआ बी, बी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। लीस्ट एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट फॉर डीसी मेजरमेंट, तो सबसे सस्ता, ठीक है ना, सब लीस्ट एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट डीसी मेजरमेंट के लिए कौन सा होता है? हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, डायनामो टाइप मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट, ट्रैक्शन टाइप मूविंग इंस्ट्रूमेंट, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो इसका राइट आंसर होता है ट्रैक्शन टाइप मूविंग इंस्ट्रूमेंट। सभी ने सी आंसर किया, गुड। तो सी इज द राइट आंसर। जो ट्रैक्शन टाइप मूविंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो लीस्ट एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं डीसी मेजरमेंट के लिए। नेक्स्ट, a solar cell is as same as photometer, same as photoemissive cell, same as photoconductive cell, same as photovoltaic cell। तो राइट आंसर इज डी, वेरी गुड, डी। ठीक है ना, जो सोलर सेल होते हैं उसको फोटोवोल्टेक सेल भी बोलते हैं, ठीक है ना, तो इनका दूसरा नाम होता है सोलर सेल का फोटोवोल्टेक सेल। तो डी इज द राइट आंसर। नाउ पीजियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, जो पीजियोमीटर होता है उसको वो क्या मेजर करता है? स्ट्रेन इन स्ट्रक्चर, वेरी लो प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर, लीकेज, रिएक्टेंस, क्या मेजर करता है? ओके, बी, गुड। स्ट्रेन इन स्ट्रक्चर, जो पीजियोमीटर होता है वो स्ट्रेन मेजर करता है, ठीक है ना। स्ट्रेन मींस डेल एल बाई एल होता है, अगर आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो उसको मेजर करता है पीजियोमीटर। तो डी इज द बी, सॉरी क्या हो गया, ओके ओके सॉरी सॉरी सॉरी, बी बी वो वेरी लो प्रेशर मेजर करता है, गलत हो गया था, ठीक है ना। तो जो पीजियोमीटर होता है वो आपका क्या करता है? प्रेशर को मेजर करता है, वेरी लो जो कम प्रेशर होता है ना उसको मेजर करता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। आप सबने बी दिया, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था इसमें यहाँ पे आगे। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, जो कम प्रेशर होता है पीजियोमीटर उसको मेजर करता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ए लोड सेल इज, जो लोड सेल होता है वो क्या होता है? स्ट्रेन गोज, फोटोवोल्टिक सेल, थर्मिस्टर, या प्रेशर पिकअप, क्या होता है जल्दी से बताओ? दैट इज स्ट्रेन गोज, ठीक है। तो जो लोड सेल होता है वो स्ट्रेन गोज होता है, ठीक है ना। तो ए इज द करेक्ट आंसर। द ब्रिज यूज टू मेजर द डाइलेक्ट्रिक लॉस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, कौन सा ब्रिज है जो डाइलेक्ट्रिक लॉस इंस्ट्रूमेंट का इंसुलेटर का यूज मेजर करता है? वो होता है आपका एंडरसन ब्रिज, विन ब्रिज, शेयरिंग ब्रिज, या एनी ऑफ द बोथ। राइट आंसर इज शेयरिंग ब्रिज। जो शेयरिंग ब्रिज है वही आपका डाइलेक्ट्रिक लॉस मेजर करता है, वही आपका कैपेसिटेंस मेजर करता है। तो शेयरिंग ब्रिज इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो कैपेसिटेंस और डाइलेक्ट्रिक लॉस दोनों को ये मेजर करता है। मैक्सवेल ब्रिज किसको मेजर करता है? मैक्सवेल ब्रिज मेजर यूज टू मेजर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, फ्रीक्वेंसी, क्या मेजर करता है? दैट इज, पढ़ा होगा आपने अच्छे से, हाँ गुड, बी, इंडक्टेंस, ठीक है ना। तो इंडक्टेंस मेजर करते हैं मैक्सवेल ब्रिज, बड़ा इजी क्वेश्चन था। एक ब्रिज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस, जल्दी से बताओ, अभी आया था, अभी बताया भी गया था आपको, जल्दी से बताओ उसका आंसर। व्हिटस्टोन, या फिर क्वीन ब्रिज, या फिर मैक्सवेल ब्रिज, या फिर शेयरिंग ब्रिज? अरे बेटा कैपेसिटेंस पूछ रहे हैं आप, सब लोग गलत आंसर कर रहे हैं उसका। ए ब्रिज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस, जो कैपेसिटेंस को मेजर करता है। राइट आंसर इज डी, डी डी, शेयरिंग ब्रिज। जो व्हीन ब्रिज होता है ये फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है, आपको बताया गया था। व्हीटस्टोन ब्रिज रेजिस्टेंस को मेजर करता है, व्हीन ब्रिज आपका फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है, मैक्सवेल ब्रिज इंडक्टेंस को मेजर करता है, और जो शेयरिंग ब्रिज होता है वो आपका कैपेसिटेंस मेजर करता है। तो राइट आंसर इज डी। आप भेड़ चाल चल रहे हो, एक ने जो बोल दिया वही सब बोल रहे हो, अपना दिमाग लगाओ। Now, which of the following instrument does not use the effect of current for the measurement purpose?
ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा करंट को मेजरमेंट पर्पस के लिए यूज नहीं करता? तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट होता है, या हॉट वायर, या रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट, या मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट। तो उसमें होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, वो करंट को यूज नहीं करता, वो चार्ज को यूज करता है, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन हटके हो गया है, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का डाल दिया गया है यहाँ पे। ये है कि थोड़ा सा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसके आपको और भी क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल जो मेजरमेंट होता है उसमें से है। तो ये इसका एक्चुअली ये पूछा है कि व्हाट कुड बी द मैक्सिमम रीडिंग ऑन 3.5 डिजिट वोल्ट मीटर। तो ये 3.5 डिजिट का मतलब क्या होता है कि एक 3 डिजिट तो पूरी होंगी और एक डिजिट हाफ होगी। हाफ डिजिट का मतलब होता है कि वो सिर्फ 0 और 1 रीड कर सकती है, ठीक है ना। तो इसको मैं आपको समझाता हूँ एक बार, एक मिनट देखिए आप, मैं यहीं पे समझा देता हूँ। वो क्या होता है कि जैसे कि 4 बॉक्स है आपके, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, ठीक है ना। अब ये जो 3 है ये 0 से 9 तक के बीच में जाएंगे क्योंकि ये पूरे हैं। लेकिन जो फोर्थ वन है ये या तो 0 होगा या 1 होगा, ठीक है ना, या तो 0 या 1। अब ये इन तीनों की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, कि इसने पूछा रेंज कितनी हो सकती है मैक्सिमम वैल्यू, वो ये मैक्सिमम 9 हो सकता है, ये भी 9 हो सकता है, और ये भी 9 हो सकता है, ठीक है ना। और ये क्या हो सकता है मैक्सिमम, ये 0 या 1, तो मैक्सिमम यहाँ 1 हो सकता है। तो राइट आंसर इस केस में हमारा डी हो गया है, ठीक है। देखो कितना आंसर सही किया है, सबने गलत किया है, एक क्यों हो जाएगा, डी, डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो डी इज द राइट आंसर इन दैट केस। ये क्वेश्चन आपने देखे नहीं, अच्छे से पढ़े नहीं, इसका मतलब शुरू शुरू में पढ़ रखे थे आपने, लेकिन ये नहीं जानते आप लोग, ठीक है ना। तो डी, इस केस में डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रिजोल्यूशन ऑफ डिजिटल एमीटर विथ 4 डिजिट डिस्प्ले। तो 4 डिजिट डिस्प्ले के लिए जो उसका रिजोल्यूशन होगा वो क्या होगा, तो 4 डिजिट मींस कंप्लीट डिजिट होंगी, ठीक है ना। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये बी, ठीक है ना। तो बी इज द राइट आंसर। ये आपको मैं फार्मूला बता दूंगा नेक्स्ट टाइम पे जब क्लास करेंगे एक बार, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। मुझे लग रहा है आप लोगों ने थोड़ा सा इसमें यहाँ पे सब लोग डगमगा जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द विच इज द इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, वोल्ट मीटर है, वाट मीटर है, एनर्जी मीटर है, या फिर पावर फैक्टर मीटर है, जल्दी से बताओ। ओके, सी, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। एनर्जी मीटर होता है, इंटीग्रेटिंग मीटर वो होता है जो रीडिंग को ऐड करते आता है। तो जो एनर्जी मीटर होते हैं हमारे घरों में लगे होते हैं, बिजली मीटर को बोलते हैं। तो एनर्जी मीटर का था इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग। तो सी इज द राइट आंसर। इफ द इंस्ट्रूमेंट हैज ए वाइड रेंज द इंस्ट्रूमेंट शुड हैव। अगर इंस्ट्रूमेंट वाइड रेंज का है तो उसका क्या होना चाहिए, स्क्वायरल स्केल, या लीनियर स्केल, या एक्सपोनेंशियल स्केल, लोगरिथम स्केल। गुड, लोगरिथम स्केल होना चाहिए, देखिए लोगरिथम स्केल होने से उसकी रेंज, वो वाइड रेंज का उसका स्केल होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप पे कंप्लीट हो गए सारे, दैट्स गुड, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।